In the previous lecture, we have seen the method that is called Big M method to solve the linear programming problem. In this lecture, we will see that what is the condition when the linear programming problem has infeasible solution. तो इनफीजिबल सॉल्यूशन में हमने जो ग्राफिकल मेथड किया था तो उसमें ये बात आपको बताई थी कि व्हाट आर द केसेस when the solution has no feasible solution. So whether you call no feasible solution or infeasible solution, both are the same thing. Now अब इसमें हम जो कंडीशन देखेंगे दैट व्हाट शुड बी द कंडीशन, क्योंकि जब बिगम मेथड अप्लाई होगा तो आप टेबल बनाएंगे सिंप्लेक्स टेबल। तो जब सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे तो बाय यूजिंग दैट टेबल, उस टेबल को देख कर हमको ये पता करना होगा कि व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ इनफीजिबल। तो उसके लिए मैं कंडीशन लिख देता हूँ। तो मैंने बेसिस वेक्टर और ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हुई थी। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप देखोगे। तो टू चेक दैट the given LPP has infeasible solution। तो infeasible solution की मैं कंडीशन बता रहा हूँ। ओके तो तो अब इनफीजिबल सॉल्यूशन में यहाँ पर हम 2 पॉइंट लिखेंगे। तो समटाइम्स किसी किसी टेबल में आपको समटाइम्स the constraints may be inconsistent, so that there is no feasible solution to the problem. Such a situation or such a condition situation is called infeasibility. All right, so in the case of infeasibility, अब अगला पॉइंट में लिखेंगे in the case of infeasibility, in the case of infeasibility, one or more artificial variable, जो artificial variable हम करते थे, artificial variables appears in the basis at a पॉजिटिव लेवल। सो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, जब हम क्वेश्चन अभी कराएंगे आपको तब क्लियर होगा। इन द फाइनल सिंप्लेक्स टेबल, इन द फाइनल टेबल। तो चलिए इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं बाय द सेम मेथड विच आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर। तो मेरे हर लेक्चर पे आपको डेट पड़ी हुई है, तो किस डेट को मैंने क्या पढ़ाया यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। सो केस ऑफ इनफीजिबल सॉल्यूशन, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होगी उसकी एज एन एग्जांपल ऑफ इनफीजिबिलिटी, दैट इज मैक्सिमाइज z इक्वल टू -x1 -x2 subject to the constraint 3x1 plus 2x2 greater than equal to 30. This is minus 2x1 plus 3x2 less than equal to minus 30, x1 plus x2 लेस देन इक्वल टू 5 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो क्योंकि देखिए मैक्सिमाइज z है तो पहला स्टेप जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP का था वो सेटिस्फाइड हुआ, बट द सेकेंड कंस्ट्रेंट हैड द नेगेटिव साइन ऑन द राइट हैंड साइड, देयरफॉर इसको हमें पॉजिटिव बनाना होगा। सो हाउ कैन यू मेक दिस पॉजिटिव? जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग विद द माइनस साइन। तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखते हैं कि व्हाट इज़ माई मैक्सिमाइज z, दैट इज़ व्हाट मैक्सिमाइज z इज x1 minus x2 minus x1 minus x2
and then the constraints are 3x1 plus 2x2. So what I should do, I should apply the include the surplus variable, so minus x3, and because it is a greater than sign, therefore one artificial variable will be added, so xa1, that should be equal to 30. Now first I have to change this sign as plus sign. So what should I do? Just I should multiply with a minus sign in this inequation to get 2x1 minus 3x2. When we multiply with the minus sign, this sign of the inequality will change. It will be greater than equal to. So greater than equal to 30. And again I will just apply the surplus variable. So 2x1 minus 3x2, and my surplus variable here, that should be x4, and one more artificial variable, that is x2, that will be equal to 30. Now in this x1 plus x2, because it is a less than type, therefore I will just apply the slack variable. So that should be x5 as well, is equal to 5. So my standard form is obtained: x3, x4, x5, xa1, xa2 greater than equal to 0. And what I do here in the objective function, plus 0x3 plus 0x4 plus 0x5 minus mxa1 minus mxa2. Now we will begin the same procedure which we have done in the previous lecture. So दो टेबल इसमें बनेंगी, तो अब मैं दो टेबल को डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूँ. द सेम मेथड यू हैव टू फॉलो विच आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट वीडियो. So here it is BCB, XB, Y1, Y2. You can take X1, X2, there is no problem. Y3, Y4, A1, A2, and then it is the minimum ratio, and the formula will be formed by using the incoming vector. So you have to just complete the table. So in the basic variable we have A1, A2 and Y5. ओके. सो क्या होगा यहाँ पर, Cj हमारा होगा, तो Cj की वैल्यू रखेंगे -1, -1, 0, 0, 0, -m, -m. ठीक है. और B हमारे वेरिएबल्स हो गए A1, A2 और Y5. तो नेक्स्ट जो होगा हमारा, ये हो जाएगा -m, -m, 0, 30, 35, 3, 2, 1, 2, -3, 1. You have to follow the same procedure. 0, -1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेल्टा जे कैलकुलेशन करेंगे. तो डेल्टा जे हमारा इनके लिए सबके लिए कैलकुलेट होगा. तो देखिए क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा 5m - 1 -m -m 0, 0, 0. ठीक है. अगर ये आपको अभी भी समझ में आए तो आप प्रीवियस वीडियो आपको देखना होगा, तभी आपको ये चीज़ क्लियर होगी. तो कोफिशिएंट इसमें सबसे ज़्यादा है m का, तो ये हमारा इनकमिंग वेक्टर हो गया. तो मिनिमम रेशियो क्या होगा, XB अपॉन Y1. XB हमारा ये रहा, Y1 ये रहा, तो ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा. तो इसमें जो सबसे कम होगा ये वाला होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग 1 हमें यहाँ मिला. तो ये वाला हमारा आउटगोइंग हुआ और ये वाला हमारा इनकमिंग हुआ, और ये 1 जो है वो की एलिमेंट हुआ. इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमें 1 बनाना है, तो ये तो ऑलरेडी 1 है. तो R3 में जो थर्ड रो है उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना होगा. हमें क्या करना होगा, इसको 0 बनाना होगा, इसको 0 बनाना होगा. तो इसके फॉर्मूला क्या बनेगा, R2 गिव्स R2 माइनस 2R3 और R3 गिव्स R3 माइनस 3R3. R1 गिव्स R1 माइनस 3R3. तो जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे तो आपकी जो टेबल बदल जाएगी, वो देखिए किस में बदल जाएगी. और फिर से हम डेल्टा जे कैलकुलेट करेंगे सबके लिए और देखेंगे सारे डेल्टा जे हमारे जो है नेगेटिव आएंगे. तो देखिए कौन सा इनकमिंग है, ये Y1, और आउटगोइंग हमारा कौन सा है, Y5. तो ये हो जाएगा A1
A1 A2 Y1, तो -m और -1, Y1 के ऊपर -1, तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ x भी आएगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ करेंगे। तो 0 0 1, सॉरी 15, ये 15 आएगा, ये 20 आएगा और ये 5, फिर आएगा 0 0 1 -1 -5 1 -1 0 0 0 -1 0 -3 -2 1 1 0 0 0 1 0। फिर क्या करेंगे, डेल्टा जे कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा जे के एलिमेंट आएंगे 0 -6m -m और यहाँ हो जाएगा -5m 0 0। अब आप ध्यान से देखेंगे सारे डेल्टा जे हमारे पॉजिटिव हैं फॉर ऑल जे, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन जो है ऑप्टिमल है, द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। बट जो आर्टिफिशियल वेरिएबल थे A1 A2, इनके बेसिस मिल गया हमें, मतलब ये ख़त्म नहीं हुआ हमारा, जो हम पिछली बार कहते थे वो ख़त्म हो जाता था लास्ट क्वेश्चन में जैसे बताया था, तो इसमें ख़त्म नहीं हुआ। बट द आर्टिफिशियल कॉलम वेक्टर्स A1 A2 corresponding to artificial variable xa1 xa2 appear in the basis at positive level, which implies that the given LPP has no feasible solution। देयरफॉर बिगम मेथड में हमें यही करना होता है, बट ये हमने जो केस सॉल्व किया ये हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल मेथड का था, ठीक है। तो अब हम अगला मेथड जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा 2 फेज मेथड, तो ये हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। अब आज तक आपको बिगम मेथड की सारी प्रैक्टिस कर लेनी है, सिंपलेक्स मेथड रिवाइज कर लेना है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको कवर कर लेना है जितना भी मैंने अभी एलपीपी में पढ़ाया है।